Good morning students. So today we start our English reader first chapter. So let us start now. Our first chapter is the chocolate room. The chocolate room, in this chapter we have some phrases like dumbfounded, means a person who is very surprised. Don't lose your heads, means to become confused or excited. We have to confuse na, to see something then become confused, what is this and that. So at that time we use this phrase, don't lose your heads. For sure means nobody sure what happened, nobody know what is happening. Suddenly something happened na, so nobody is not sure about that. So these some phrases we use in this chapter. So this is your book Root and Wings. Start our first chapter. Okay, the chocolate room. It is, the story revolves around a boy, a young boy whose name is Charlie Bucket. He is a poor. Here in this story he described he is very poor and he used to become a good for every work and everything. Okay, let us start about this story. So listen it very carefully. Read this interesting excerpt from the book Charlie and the Chocolate Factory by world renowned British author Roald Dahl. Is the author of this story is Roald Dahl. Yes, writer of the story. Okay, this story taken from the book Charlie and the Chocolate Factory. इस बुक में से एक छोटा सा शॉर्ट जो है वो इसका पार्ट जो है स्टोरी का वो हमारी बुक में इसमें लिया गया है, ठीक है, और रिटन बाय रोल्ड डाल. Book, a movie based on the book has been a big hit among movie goers in the recent past. Okay, this is the movie, a short movie to show the students about those who interested to see the movies for that. Okay, story. Let us start. The story revolves around the adventures of a young boy, Charlie Bucket, inside the biggest chocolate factory of the world in his hometown. स्टोरी है वो एक यंग बॉय है चार्ली बकेट, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं. ओके, और इस स्टोरी में अपने घर के फैक्ट्री जो है चॉकलेट की एक फैक्ट्री है उसमें वो वर्क करता है. इट इज़ ओन्ड बाय एसेंट्रिक चॉकलेटियर विली वोंका. वो विली वोंका एक चॉकलेटियर हेड है फैक्ट्री का है, तो वो वहाँ पर चॉकलेट्स जो है वो बनती हैं. एक स्ट्रेंज, यहाँ एसेंट्रिक का मीन्स है स्ट्रेंज अजीब, चॉकलेटियर मीन्स जो चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है, उनका नाम है विली वोंका. और वो जो है यंग बॉय चार्ली बकेट है वो यहाँ पर अपना काम करता है और अपना खुद का फैक्ट्री, जो विली वोंका है उसने खुद की फैक्ट्री जो है वो डेवलप की हुई है. ओके, Charlie comes from a very poor family. He lives with his bedridden maternal and paternal grandparents as well as his parents. चार्ली जो है वो एक पूरी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपने क्या है कि अपने बूढ़े पेरेंट्स जो मैटरनल पेरेंट्स हैं और जो पैटर्नल पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ पूरी फैमिली के साथ वो अपने वहाँ रहते हैं. He is respectful towards everyone in his life. He is undernourished but does not take any extra food because it would deprive. Okay, वो सबके लिए रेस्पेक्टफुल है, वो बहुत ही सबकी रेस्पेक्ट करता है. एवरीवन, ही रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन. अपनी लाइफ में वो सबकी रेस्पेक्ट करता है. ही इज़ अ गुड बॉय. ही इज़ अंडरनरिश्ड. ओके, राइट डाउन द हार्ड वर्ड. hard words.
अंडर नरिश्ड मीन्स वीक। मीन्स वो काफ़ी शारीरिक तौर से काफ़ी वीक हैं और वो अपना बट डज नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा फूड बिकॉज इट वुड डिप्राइव अनदर फैमिली मेंबर ऑफ फूड। वो ज़्यादा खाना नहीं खाता, क्यों? क्योंकि वो दूसरे का हिस्सा भी बचा के रखना चाहता है। यहाँ डिप्राइव्ड का मीन्स है प्रिवेंट, बचा के रखना। ही हैज़ so many reasons to complain, but he never does so. He is fascinated by the stories that Grandpa Joe narrates to him about Willy Wonka. He has so many reasons to complain. उसके पास बहुत से reasons हैं, बहुत सी complaints हैं, but वो किसी को अपनी complaint कहता नहीं है। वो अपने grandpa जो है उनको स्टोरी बताते हैं विली वोंका के बारे में। उस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड मतलब मोहित होकर उस स्टोरी को वो सुनता है। और विली वोंका और उसकी चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में जो भी स्टोरी बताई जाती है उसके ग्रैंडपा से वो उस स्टोरी को बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता है। दे कम टू नो दैट विली वोंका हैज़ सीक्रेटली हाइडन ए गोल्डन टिकट इन 5 चॉकलेट्स। उन्होंने बताया कि विली वोंका जो है वो चॉकलेट फैक्ट्री का जो मालिक है वो उसने 5 टिकट्स चॉकलेट्स में 5 टिकट छुपा दिए हैं। दीज चॉकलेट्स वर देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलोंग विद अदर चॉकलेट। दूसरी चॉकलेट्स के साथ उनको मिला करके वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ में, सभी कंट्रीज़ में उन चॉकलेट्स को भेज दिया जाता है। एनी one who found the ticket would be allowed to visit the factory and would win a supply of confectionery for his entire life। फिर उन चॉकलेट्स को जब वो जो 5 चॉकलेट्स हैं जिनके अंदर वो टिकट्स डाले जाते हैं वो जिसको भी मिलते हैं उसको उस चॉकलेट फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिलता है। और जो कन्फेक्शनरी चीज़ें होती हैं, जो भी स्वीट्स, दीज चॉकलेट्स, ये उनको वहाँ पर उन बच्चों को दी जाती हैं एंटायर लाइफ के लिए। अपार्ट फ्रॉम चार्ली 4 अदर चिल्ड्रन विन द टिकट्स। ऑगस्टस गैलोप, ए वेरी फैट एंड ग्रीडी बॉय। वेरुका सॉल्ट, हु इज स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड डिमांड एवरीथिंग शी वांट्स। चार्ली के साथ 4 अदर चिल्ड्रन हैं जिन्होंने टिकट को जीता था। उनमें से है ऑगस्टस गैलोप, ए वेरी फैट बॉय, काफ़ी मोटा लड़का, और ग्रीडी, लालची भी था वो। वेरुका सॉल्ट, हु इज स्पॉइल्ड चाइल्ड, वेरुका सॉल्ट था जो बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। एंड डिमांड एवरीथिंग शी वांट्स, जो वो चाहता था उसकी हमेशा वो डिमांड रखता था। वायलेट बोरेग्रेड, ए गर्ल हु चीव गम ऑल द टाइम एंड माइक टेवी। एक गर्ल है जिसका नेम है वायलेट बोरेग्रेड। ये गर्ल जो है वो हमेशा चिविंगम चबाती रहती है। और मिके टेवी हु लव्स वॉचिंग टेलीविज़न, जो टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखता है। ये उन बॉयज़ के नाम हैं, उन चिल्ड्रंस के नेम हैं जो टिकट्स जिन्होंने विन किया है। द चिल्ड्रन आर accompanied by their parents. Hard words, accompanied means along with. तो जो चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ फैक्ट्री की विजिट के लिए आए हैं। वेरिया चार्ली टेक्स ग्रैंडपा जो अलोंग, और चार्ली ने अपने ग्रैंडपा जो को अपने साथ लिया है। विली वोंका शो द चिल्ड्रन अराउंड एंड ऑल्सो टेक्स देम टू चॉकलेट रूम। विली वोंका ने चारों तरफ उनको दिखाया और फिर उसे चॉकलेट जो रूम है, जहाँ चॉकलेट बनती हैं, जो चॉकलेट रूम है वो बहुत ही वंडरफुल रूम है, वो वहाँ उसको ले जाकर दिखाने लगा। ग्रेजुअली ऑल द 4 चिल्ड्रन गेट एलिमिनेटेड 1 by 1 एंड चार्ली इज़ द ओनली चाइल्ड लेफ्ट। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सारे 4 चिल्ड्रन थे उनको वो धीरे धीरे उनको एलिमिनेट कर दिया गया और जो सिर्फ चार्ली बचा था वो
ही विन द प्राइज, उसको प्राइज मिला द चॉकलेट फैक्ट्री, पूरी चॉकलेट फैक्ट्री उसके नाम। विली वोंका एक्चुअली वांटेड टू फाइंड एन हायर, वो एक अपना उत्तराधिकारी मांगता था, यानी विली वोंका को चाहिए था एक उत्तराधिकारी, जो उसको किसने चुना, उसने चार्ली को चुना था। चार्ली इज द ओनली चाइल्ड टू पास द कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट को जिसने विन किया था वो चार्ली ही था। In the end, they go to Charlie's house in a glass elevator and get the whole family to spend the rest of their life in the factory. लास्ट में क्या होता है, चार्ली जो है वो लिफ्ट से, एलिवेटर क्या होता है, लिफ्ट, एलिवेटर, ठीक है, ग्लास की जो लिफ्ट होती है उसको एलिवेटर कहते हैं, और उसकी जो पूरी फैमिली जो है वो स्पेंड करेगी अपनी होल लाइफ उस फैक्ट्री में, आराम से रह सकते हैं, खाते हैं पीते हैं और सब कुछ वहाँ उनको दिया जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन इन द चॉकलेट रूम एंड व्हाट इज लुक लाइक। अब ये तो बताया कि चार्ली को लास्ट में वो चॉकलेट फैक्ट्री है वो उसको प्राइज में विली वोंका ने गिफ्ट में दे दी थी, क्योंकि उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उसने, चार्ली ने जब कॉन्टेस्ट को विन किया तो विली वोंका ने अपनी जो फैक्ट्री है उसके नाम कर दी, और होल लाइफ, एंटायर लाइफ वो आराम से रहे। अब यहाँ पर हम चॉकलेट रूम में क्या होता है वो देखेंगे। एन इम्पोर्टेंट रूप दिस cried Mr. Willy Wonka as he took a bunch of keys from his pocket and slipped one into the keyhole of the door. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूम है, विली वोंका ने ऐसा कहा, और उसकी चाबी लेकर एक उसके होल में उस चाबी को डाल करके डोर को ओपन किया। He continued, this is the nerve center of whole factory. और फिर वो बताने लगा, कंटिन्यू बोले जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है, ये जो रूम है, ये पूरी फैक्ट्री का नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम मतलब कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको यहाँ पर नर्व सेंटर के यूज किया गया है। पूरी फैक्ट्री का नर्व सिस्टम है। द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस का हार्ट है ये। इंसिस्ट अपॉन माई रूम्स बीइंग ब्यूटिफुल, लेट अस गो इन। उसने अपने बात पर जोर देते हुए कहा, इंसिस्ट का मतलब होता है बात पर वजन डालना, अपने बात पर जोर देते हुए कहा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार रूम है। लेट अस गो इन, चलो अंदर चल के देखते हैं। देन बट बी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन, लेकिन सावधान रहना बच्चों, क्यों? डोंट लूज योर हेड्स एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। आई टोल्ड हेयर ना, डोंट लूज योर हैंड मीन्स डोंट बी एक्साइटेड। रूम को देखकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, वहाँ पर बिल्कुल शांति से आपको उनको चीज़ों को देखना है। बी काम, वहाँ पर शांति बनाए रखना। एज सुन एज मिस्टर वोंका ओपन द डोर, 5 चिल्ड्रन एंड अदर पुश देयर वे इन। जैसे ही दरवाज़ा, मिस्टर वोंका ने दरवाज़ा खोला, जो चिल्ड्रन हैं वो अंदर की तरफ चले गए। एंड व्हाट एन अमेजिंग साइट ग्रीटेड देयर आइज, कितना अजीब अमेजिंग साइट उन्होंने वहाँ जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, देखा तो कितना वंडरफुल साइट था वो, कितना अमेजिंग था वो। दे वर लुकिंग डाउन अपॉन ए लवली वैली विद ग्रीन विंडोज ऑन आइदर साइड एंड अलोंग द बॉटम ऑफ इट फ्लो ए ग्रेट ब्राउन रिवर। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दोनों साइड, दोनों तरफ जो है वो एक वैली है, उसके दोनों तरफ क्या है, ग्रीन विडोज़ हैं, जो ग्रीन फील्ड्स हैं दोनों तरफ, और बीच में एक बहुत शानदार वैली बह रही है, और साइड में साथ में उसके एक बहुत ब्राउन कलर की एक रिवर बहती हुई दिखाई दे रही है। हाफ वे अलोंग द रिवर वाज ए बिग वाटरफॉल, उस रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वाटरफॉल है, एक झरना है। ए वेरी स्टिप क्लिफ ओवर विच द वाटर कर्ल्ड रोल्ड इन ए सॉलिड सीट, वाटर जो है वो घूमता हुआ, रोल करता हुआ एक सॉलिड उसमें चेंज होकर के वहाँ पर दिखाई दे रहा था। देन इट वेंट डाउन इनटू ए बॉइलिंग चर्निंग वर्लपूल, फिर वहीं पर चर्निंग, वर्लपूल, चर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, चाहे वो चॉकलेट हो, मिट्टी हो या एनीथिंग को, उसको शेक करना, मूव करके शेक करना, ठीक है। और वर्लपूल का मतलब है ए रोटेटिंग मास ऑफ वाटर, यहाँ
वहाँ पर मतलब होता तो वाटर है, लेकिन यहाँ पर चॉकलेट को रोटेट किया जाता है ना, तो वो वहाँ पर चर्निंग वर्लपूल। फुल ऑफ फ्रॉथ एंड स्प्रे। फ्रॉथ है एक स्मॉल बबल इन लिक्विड, मास ऑफ स्मॉल बबल्स इन लिक्विड। लिक्विड में एक मास बन जाता है बबल्स का, उसको बोलते हैं फ्रॉथ, ठीक है। फिर स्प्रे। स्प्रे यहाँ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड विच आर थ्रोन इनटू द एयर। लिक्विड की स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं, वो उसको यहाँ पर स्प्रे बोला गया है, ड्रॉप्स। द मोस्ट एस्टोनिंग साइट वाज जस्ट बिलो द वाटरफॉल। एक बहुत ही सरप्राइजिंग करने वाला जो सीन है यहाँ पर, एस्टोनिंग साइड है मतलब सीन है, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग सीन है, वो वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे था। अबाउ ए डजन इनॉर्मस ग्लास पाइप्स वर डेंगलिंग। क्या देखा उन्होंने? डजन्स, दर्जनों बहुत बड़े बड़े जो है पाइप्स हैं वो आपस में लटके हुए नजर आ रहे हैं। into the river from somewhere high up in the selling and sucking up the brownish muddy water from the river। और किस तरह से जो वाटर था, मडी वाटर था, मतलब चॉकलेट वाटर था, जो चॉकलेट से भरा हुआ जो वो पानी था वो ब्राउन कलर का किस तरह से उनको दिखाई दे रहा था। वेरी सरप्राइजिंगली दे आर सीइंग। नोबडी कुड गेस वेयर दे वर कैरिंग इट टू। कोई नहीं जानता था कि वो जो वाटर है वो जो आ रहा है रिवर में वो कहाँ से आ रहा है। सिंस द पाइप्स वर मेड ऑफ ग्लास। जो पाइप थे वो ग्लास के बने हुए थे। यू कुड सी द लिक्विड बबलिंग एंड फ्लोइंग इन द पाइप। वो ग्लास के होने की वजह से उस पाइप के अंदर से जो लिक्विड जा रहा था वो आसानी से हम देख सकते थे। अबव द नॉइज ऑफ गशिंग वाटरफॉल। कोई चीज़ बहती, ग्रेट फ्लोइंग सडनली इन ए ग्रेट वॉल्यूम, बहुत हाई क्वालिटी से जो चीज़ बहती है वो पाइप के अंदर से जो है वाटरफॉल जो दिखाई दे रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी। द इंसेंट शकिंग साउंड ऑफ द पाइप्स कुड बी क्लियरली हर्ड। उसकी जो कंटिन्यूसली जो साउंड बन रही थी वो सुनाई सबको दे रही थी, वो क्लियरली सबको सुनाई दे रही थी, जो भी वहाँ पर लिक्विड की आवाज़ हो रही थी पाइप के अंदर। तो एक वंडरफुल साइट जो चॉकलेट रूम में उनको देखने को मिला था, तो सारे बच्चे जो थे वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि ऐसा रूम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इट इज़ एन इमेजिंग स्टोरी। ओके, ग्रेसफुल ट्रीज। फिर उन्होंने वहाँ क्या देखा? ग्रेसफुल ट्रीज एंड बुशेस ग्रीव अलोंग द रिवर बैंक। रिवर जो है उसके किनारे पर जो है वो बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज और झाड़ियाँ उगी हुई थी। देयर वर वीपिंग विलोज एंड एल्डर्स एंड टॉल क्लम्स ऑफ रोडोडेनेड्रॉन विद देयर लवली पिंक एंड रेड एंड मोवी ब्लूज ग्रे। ठीक है, वहाँ पर ये जो है वो विलोज यानी कि ट्री और शब्स जो टेम्परेट क्लाइमेट में जो होते हैं वहाँ पर उनको बोलते हैं विलोज। फिर यहाँ पर एल्डर्स हैं, एल्डर्स होते हैं widely distributed trees of the birch family with toothed leaves। okay, then after क्या है कि वहाँ पर ये जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है कैसे छोटे बड़े और ग्रीन कलर के और कितने शानदार, मतलब वहाँ पे हरियाली छाई हुई है। और वहाँ पर जो ग्रासलैंड है पूरा वो पिंक कलर का, लवली पिंक एंड रेड कलर का, बहुत ही शानदार महकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन द मिडोज यानी पीस ऑफ ग्रासलैंड, घास का एक बना हुआ टुकड़ा होता है। देयर वर थाउजेंड ऑफ बटर कप्स दैट ग्रीव्स। वहाँ पर बटर कप्स यानी कि यहाँ पर हर्बेसियस प्लांट विद ब्राइट येलो कप शेप फ्लावर, जिनका येलो कलर के फ्लावर होते हैं उसके ऊपर, और वो वहाँ पर उगे हुए हैं ग्रीव। मिस्टर वोंका सडनली बिगन टू डांस अप एंड डाउन द पॉइंटेड हिज गोल्ड टॉप्ड केन एट द ग्रेट ब्राउन रिवर एज ही क्राइड। मिस्टर वोंका अचानक क्या है, डांस के मूड में हो गया और अपनी जो गोल्डन टॉप वाली जो छड़ी होती है जो उसने हाथ में ले रखी थी उसको ऊपर उठा के पॉइंटेड आउट करने लगा रिवर की तरफ और बताने लगा, लुक देयर ऑल दैट इज चॉकलेट। ये जो सब कुछ है वो चॉकलेट है। एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर इज हॉट मेल्टेड चॉकलेट ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी। यहाँ जो रिवर में एक एक ड्रॉप है वो सारी चॉकलेट्स हैं
वो चॉकलेट है और बहुत ही शानदार क्वालिटी की चॉकलेट यहाँ पर बनाई जाती है। देयर इज इनफ चॉकलेट इन देयर टू फिल एवरी बाथटब इन दिस एंटायर कंट्री एज वेल एज ऑल द स्विमिंग पूल्स। यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स बनती हैं जिससे कि पूरे कंट्री के जो बाथ टब हैं वो इस चॉकलेट से भरे जा सकते हैं। और यहाँ पर हर कंट्री का एज लाइक ए स्विमिंग पूल है ये। डोंट यू थिंक इट इज़ टेरिफिक, ज़्यादा इसमें टेरिफिक भयानक नहीं है ये। द पाइप्स शक अप द चॉकलेट एंड कैरी टू द अदर रूम इन द फैक्ट्री। पाइप्स जो हैं ये चॉकलेट्स, इसमें से चॉकलेट पास होती है और दूसरे रूम्स में उसको पाइप्स के थ्रू भेजा जाता है। वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। Thousands of gallons an hour is carried, my dear children. Gallons means a unit of volume. किसी चीज़ की छोटी सी इकाई जो होती है उसको हम गैलन्स बोलते हैं। तो thousands of gallons, इतने सारा जो है वो चॉकलेट्स वो यहाँ से पास किया जाता है। Then the children and their parents were absolutely amazed and dumbfounded. Dumbfounded बिल्कुल सरप्राइज होकर, एक्साइटेड होकर, एकदम स्तंभ रह जाना, देखकर किसी चीज़ को आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक है, चिल्ड्रन और उसके बच्चे इस अमेजिंग सीन को देखकर बिल्कुल डम्फाउंड हो गए थे। दे कुड नॉट अटर ए वर्ड, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। दे सिंपली स्टूड देयर एंड स्टेयर, वो वहाँ पर खड़े थे और एक साथ खड़े होकर वहाँ पर एक टक देखने लगे, चीज़ों को देखने लगे, क्योंकि इट वॉज ए वंडरफुल साइट कि हर जगह उन्हें चॉकलेट ही चॉकलेट दिख रही थी। चॉकलेट और वहाँ पर जो ग्रास थे, जो हब्स एंड सब्स थी, जो भी ट्रीज़ थे, वो सब वंडरफुल थे। एक अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही थी उनको। मिस्टर वोंका कंटिन्यू, मिस्टर वोंका लगातार बोलते रहे। द वाटरफॉल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज इट मिक्सेज द चॉकलेट। वाटरफॉल जो है यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि चॉकलेट को मिक्स करता है। इट्स चर्न्स इट अप, चर्न्स मतलब उसको लिक्विड को मिलाना, बहुत फोर्स के साथ उसको मिक्स करना। जो ये वाटरफॉल ये काम करता है उसको चॉकलेट्स के जो लिक्विड है उसको मिलाने का। पाउंड्स एंड बीट्स इट वेल, पाउंड्स मीन्स बीट विथ समथिंग, किसी चीज़ को कूट के अच्छे से या किसी चीज़ को मिला के, तो इस तरह से चॉकलेट को उसको अच्छे से बीट करके और उसको बिल्कुल मुलायम, झागदार और बिल्कुल हल्का बनाया जाता है। नो अदर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड डज इट प्रॉपरली लाइक दिस। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो इस तरह की चॉकलेट्स बनाती है। एंड डू यू लाइक माई ट्रीज बुशीज मीडोज, यहाँ पर जो ग्रास लैंड है, ट्रीज़ हैं, जो भी बुशीज़ हैं, झाड़ियाँ हैं, क्या ऐसी झाड़ियाँ पहले कभी देखी हैं आप लोगों ने? बहुत लाइक द ग्रास एंड बटरकप्स, जो ग्रास हैं और जो फूल लगे हुए हैं। डोंट यू थिंक दे आर लवली, तुम नहीं जानते कि वो लवली हैं? दे आर ऑल ईटेबल, वो दिखने में भी लवली हैं और वो सब खाने लायक हैं सारी चीज़ें। जो भी ग्रास है, जो भी ट्रीज़ है, जो भी फूल पत्ते जितने भी वहाँ लगे हुए हैं वो सब ईटेबल हैं, उनको खा सकते हो आप। The grass you are standing on, my dear children, is made of a new kind of soft minty sugar that I have just invented. You try a blade. अब उसने बताया कि जिस ग्रास पर तुम खड़े हुए हो वो ग्रास एक शुगर से बनी हुई है, एक तरह की चीनी से बनी हुई है जो बहुत स्वीट है और जिसको कि मैंने इन्वेंट किया है और इसको आप तोड़ के खा सकते हो। Everybody bent down and picked one blade of grass except Augustus Gallop. Augustus Gallop को छोड़कर बाकी सब नीचे झुककर उस ग्रास को खाने लगे। अब जो ऑगस्टस ग्लोप है उसने सिर्फ जरा सा नहीं खाया, बाकी who took a big handful, उसने पूरे हाथों में उसको भर लिया। चार्ली विस्पर्ड टू ग्रैंडपा जो, ग्रैंडपा को धीरे से फुसफुसाना, विस्पर्ड का मतलब होता है यहाँ फुसफुसाना। आई लेटर राइट डाउन हार्ड वर्ड्स, more hard words in this chapter.
तो देन ग्रैंडपा जो, ग्रैंडपा हैजंट इट गॉट ए वंडरफुल टेस्ट, ग्रैंडपा क्या हुआ, इसका टेस्ट काफ़ी वंडरफुल नहीं है, बहुत ही शानदार है। वेल आई कुड गो अराउंड ऑन ऑल फोर्स लाइक ए काउ एंड ईट होल फील्ड ऑफ ग्रास, काउ की तरह मैं सारी ग्रास को हम खा जाएंगे, सैड ग्रैंडपा जो, ऐसा उसने कहा। ट्राई ए बटर कप टू, बटर कप जो फूल पत्ते लगे हुए हैं उनको भी ट्राई करो, दे इवन नाइसर, वो भी बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत नाइस हैं, मिस्टर बोंका ने बताया। ऑल ऑफ सडन दे हर्ड स्क्रीम ऑफ एक्साइटमेंट फ्रॉम वेरुका सॉल्ट हु वाज पॉइंटेड टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। अचानक क्या होता है कि वो रिवर के दूसरी तरफ देखते हैं, जो वहाँ पर है वेरुका सॉल्ट है, वो जो काम कर रहा है उसको पॉइंटेड आउट करके बताते हैं, लुक देयर, वहाँ देखो, व्हाट इज इट, क्या है ये, ही इज मूविंग एंड वॉकिंग, वो चल भी रहा है और वॉक भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, चल भी रहा है। इट इज़ ए लिटिल मैन डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल, वाटरफॉल के नीचे छोटे छोटे आदमी उनको दिखाई दिए। चार्ले क्राइड, चार्ले चिल्लाया, शी इज़ राइट ग्रैंडपा, वो ठीक कह रही है ग्रैंडपा, कैन यू सी द लिटिल मैन, उन छोटे छोटे मैन को आप देख रहे हो। ग्रैंडपा जो सैड एक्साइटेडली, वो भी एक्साइटेड होकर कहने लगे, यस आई कैन सी हिम, हाँ मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। चार्ले नाउ अदर्स ऑल्सो बिगन टू शाउट इन एक्साइटेड वॉइस, उन छोटे छोटे जो मैन वहाँ वर्क कर रहे हैं, जो छोटे छोटे आदमी वहाँ वर्क कर रहे हैं, उनको देख करके वो सभी चिल्लाने लगे और एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि ये छोटे छोटे जो मैन हैं वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू ऑफ देम, देयर आर सो मैनी ऑफ देम, पहले वो दो दिखाई दिए, फिर वो बहुत सारे दिखाई दिए। वट आर दे बिजी डूइंग, वो कर क्या रहे हैं। वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए हैं। हु आर दीज लिटिल मैन, वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कौन हैं, छोटे छोटे मैन हैं वो कौन हैं। दे आर नो हायर देन माई नी, मेरे घुटनों से ज़्यादा बड़े नहीं हैं वो। दे हैव फनी लॉन्ग हेयर, और उनके बहुत ही फनी किस्म के बड़े बड़े हेयर हैं। The little man stopped what they were doing and looked at the visitor who rushed to the edge of the river to get a closer look. लिटिल मैन है वो क्या कर रहे हैं, विजिटर्स ने पूछा कि ये लिटिल मैन जो है वो क्या कर रहे हैं, ये जो इसके रिवर है उसके किनारे जो है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, कौन है वो, कहाँ से आए हैं। वन ऑफ द लिटिल मैन पॉइंटेड एट द चिल्ड्रन एंड विस्पर्ड समथिंग, उनमें से, उन छोटे छोटे मैन में से एक ने पॉइंट आउट करके बच्चों की तरफ कुछ कहा, कुछ फुसफुसाया, अदर मैन दूसरे को। एंड ऑल ऑफ देम बस्ट इनटू पील ऑफ लाफर, और फिर वो कुछ बात बोल करके बहुत तेजी से हंसने लगे। वन ऑफ द लिटिल मैन पॉइंटेड एट द चिल्ड्रन एंड विस्पर्ड समथिंग टू द अदर मैन, और फिर उनमें से एक जो है लिटिल मैन है, सॉरी, चार्ली सेड बट दे जस्ट कांट बी रियल पीपल लाइक अस, वो हमारी तरह रियल पीपल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर वोंका आंसर, मिस्टर वोंका ने आंसर दिया, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, दे आर रियल पीपल फॉर श्योर, पक्का वो हमारे जैसे ही आदमी हैं। दे आर नोन एज ओम्पा लोम्पाज, मतलब एक नेटिव लोम्पा लैंड के जो हैं फनी टाइप के लोग हैं वो, और उनके ऑरेंज उनका कॉम्प्लेक्शन है और ग्रीन कलर के उनके हेयर हैं। तो यहाँ जो स्टोरी है ये चार्ले एंड चॉकलेट फैक्ट्री से ली गई है, जो रोआल्ड डाल ने लिखी थी। इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने पढ़ा कि किस तरह से 5 चिल्ड्रन को एक चॉकलेट फैक्ट्री, एक चॉकलेट रूम में विजिट करने का मौका मिला, और वहाँ उन्होंने कितनी वंडरफुल जो चीज़ें हैं, कितनी अजीब अजीब तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पर देखी, चॉकलेट्स, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, flowers, these and that, or all they are eatable. Okay, so that's your chapter finish here. Okay, in next video we do hard words and word meaning.